یہ بھی کیا ہے، آرام سے کر لیں گے۔ اب میرا مطلب ہے کہ ابھی تو شادی کا ہنگامہ ہے، بعد میں تسلی سے یہ ساری چیزیں دیکھ لیں گے۔ نہیں شیرین، گل کو کھو دینے کے بعد مجھے شدت سے اس بات کا احساس ہوا ہے، میں نے اپنی بیٹیوں کو خود سے دور رکھ اب میرا خیر سے اپنے گھر کی ہو رہی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ گھر چھوڑنے سے پہلے وہ یہاں کی کوئی اچھی یادیں ساتھ لے جائے۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ بچیاں جانتی تھی کہ آپ مصروف ہیں، اور پھر اتنے بڑے بزنس کو اتنا کامیاب کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے، اور میں نے تو ہمیشہ ہی اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے کہ بچیوں کو ماں کی کمی کبھی بھی محسوس نہ ہونے دو۔ کر لیں گے۔ اب میرا مطلب ہے کہ ابھی تو شادی کا ہنگامہ ہے، بعد میں تسلی سے یہ ساری چیزیں دیکھ لیں گے۔ نہیں شیرین، گل کو کھو دینے کے بعد مجھے شدت سے اس بات کا احساس ہوا ہے، میں نے اپنی بیٹیوں کو خود سے دور رکھ کر بہت ظلم کیا ہے ان پر۔ اب میرا خیر سے اپنے گھر کی ہو رہی ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ گھر چھوڑنے سے پہلے وہ یہاں کی کوئی اچھی یادیں ساتھ لے جائے۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ بچیاں جانتی تھی کہ آپ مصروف ہیں، اور پھر اتنے بڑے بزنس کو اتنا کامیاب کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے، اور میں نے تو ہمیشہ ہی اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے کہ بچیوں کو ماں کی کمی کبھی بھی محسوس نہ ہونے دو۔ ہیلو ایوری ون، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں پاکستانی ڈرامہ سیریل اے دل آزما نہیں کی آنے والی 11ویں قسط کے ٹیزر کے بارے میں، جس نے سوشل میڈیا پر ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ یار سچی بات تو یہ ہے کہ اس بار کا ٹیزر دیکھ کر دل واقعی بوجھل سا ہو گیا ہے۔ ٹیزر کی شروعات ہی اتنی ہیوی ہے کہ آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کہانی اب کس قدر سنجیدہ موڑ اختیار کر چکی ہے۔ ہمیں دکھایا گیا ہے کہ کیسے ایک انسان اپنی ضد کی خاطر دوسرے کی زندگی کو داؤ پر لگا دیتا ہے۔ وہ جو ایک ڈائیلاگ ہے نا کہ میں تب تک نہیں ہٹوں گا جب تک تم مان نہیں جاتے، یہ سن کر صاف لگ رہا ہے کہ یہاں محبت نہیں بلکہ اپنی بات منوانے کی جنگ ہو رہی ہے۔ سب سے بڑی ڈیولپمنٹ جو اس ٹیزر میں نظر آئی وہ میہا کے نکاح کا فیصلہ ہے۔ اکثر ہمارے ڈراموں اور معاشرے میں سمجھا جاتا ہے کہ بس شادی کر دو تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، لیکن کیا واقعی ایسا ہوتا ہے؟ ٹیزر میں اسی تلخ حقیقت کو دکھایا گیا ہے کہ زبردستی کے جوڑ کبھی بھی سکون نہیں دے سکتے۔ جب رشتے میں بھروسہ اور مرضی شامل نہ ہو تو وہ رشتہ ایک بوجھ بن جاتا ہے جسے ڈھونا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اور بھائی، ٹیزر کے آخر میں جو بات کہی گئی ہے اس نے تو جیسے روح کو چھو لیا۔ دل آسمان نہیں کہ ہر بات سما جائے، اس کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ کیا کمال بات کہی ہے!
अक्सर हम दूसरों से ये तवक्को रखते हैं कि वो हर दुख, हर ज़बरदस्ती और हर फैसला खामोशी से कबूल कर लेंगे, लेकिन इंसान के अंदर भी एक हद होती है जहां जाकर वो टूट जाता है। ये किस्त बहुत ही जज्बाती होने वाली है और हमें ये सोचने पर मजबूर करेगी कि क्या हम रिश्तों के नाम पर दूसरों की जिंदगियों के साथ इंसाफ कर रहे हैं या नहीं। आपको क्या लगता है, क्या मीहा का निकाह उसकी जिंदगी की मुश्किलें कम करेगा या बढ़ा देगा? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो इस टीजर का निचोड़ है, वो आखिर में कही गई ये लाइन है, दिल आसमान नहीं कि हर बात समा जाए, उसकी भी एक हद होती है। क्या कमाल बात कही है। अक्सर हम दूसरों से ये तवक्को रखते हैं कि वो हर दुख, हर ज़बरदस्ती और हर फैसला खामोशी से कबूल कर लेंगे, लेकिन इंसान के अंदर भी एक हद होती है जहां जाकर वो टूट जाता है। जब दिल भर जाए तो फिर ना मोहब्बत बाकी रहती है और ना ही लिहाज। ये किस्त बहुत ही जज्बाती होने वाली है और हमें ये सोचने पर मजबूर करेगी कि क्या हम रिश्तों के नाम पर दूसरों की जिंदगियों के साथ इंसाफ कर रहे हैं या नहीं। अब देखना ये है कि क्या मीहा इस दबाव में आकर टूट जाएगी या अपने हक के लिए खड़ी होगी। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट्स में अपनी राय लाजमी शेयर करें। अगर आपको ये तफसीली रिव्यू पसंद आया है और आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह हर किस्त का डीप एनालिसिस करूं, तो अभी के अभी इकरा जट रिव्यू को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि कोई भी अपडेट मिस न हो। आपका एक सब्सक्राइब मुझे मजीद ऐसी वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई और धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल ए दिल आज़मा नहीं की आने वाली 11वीं किस्त के टीजर के बारे में, जिसने सोशल मीडिया पर एक नई बहस छेड़ दी है। यार सच्ची बात तो ये है कि इस बार का टीजर देखकर दिल वाकई बोझल सा हो गया है। टीजर की शुरुआत ही इतनी हैवी है कि आपको अंदाजा हो जाता है कि कहानी अब किस कदर संजीदा मोड़ इख्तियार कर चुकी है। हमें दिखाया गया है कि कैसे एक इंसान अपनी जिद की खातिर दूसरे की जिंदगी को दांव पर लगा देता है। वो जो एक डायलॉग है ना कि मैं तब तक नहीं हटूंगा जब तक तुम मान नहीं जाते, ये सुनकर साफ लग रहा है कि यहाँ मोहब्बत नहीं बल्कि अपनी बात मनवाने की जंग हो रही है। सबसे बड़ी डेवलपमेंट जो इस टीजर में नजर आई वो मीहा के निकाह का फैसला है। अक्सर हमारे ड्रामों और मुआशरे में समझा जाता है कि बस शादी कर दो तो सारे मसले हल हो जाएंगे, लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है? टीजर में इसी तल्ख हकीकत को दिखाया गया है कि जबरदस्ती के जोड़ कभी भी सुकून नहीं दे सकते। जब रिश्ते में भरोसा और मर्जी शामिल ना हो तो वो रिश्ता एक बोझ बन जाता है जिसे ढोना बहुत मुश्किल होता है। और भाई, टीजर के आखिर में जो बात कही गई है उसने तो जैसे रूह को छू लिया। दिल आसमान नहीं कि हर बात समा जाए, उसकी भी एक हद होती है। क्या कमाल बात कही है। अक्सर हम दूसरों से ये तवक्को रखते हैं कि वो हर दुख, हर जबरदस्ती और हर फैसला खामोशी से कबूल कर लेंगे, लेकिन इंसान के अंदर भी एक हद होती है जहां जाकर वो टूट जाता है। ये किस्त बहुत ही जज्बाती होने वाली है और हमें ये सोचने पर मजबूर करेगी कि क्या हम रिश्तों के नाम पर दूसरों की जिंदगियों के साथ इंसाफ कर रहे हैं या नहीं। आपको क्या लगता है, क्या मीहा का निकाह उसकी जिंदगी की मुश्किलें कम करेगा या बढ़ा देगा? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो इस टीजर का निचोड़ है वो आखिर में कही गई ये लाइन है, दिल आसमान नहीं कि हर बात समा जाए, उसकी भी एक हद होती है। क्या कमाल बात कही है। अक्सर हम दूसरों से ये तवक्को रखते हैं कि वो हर दुख, हर जबरदस्ती और हर फैसला खामोशी से कबूल कर लेंगे, लेकिन इंसान के अंदर भी एक हद होती है जहां जाकर वो टूट जाता है। जब दिल भर जाए तो फिर ना मोहब्बत बाकी रहती है और ना ही लिहाज। ये किस्त बहुत ही जज्बाती होने वाली है और हमें ये सोचने पर मजबूर करेगी कि क्या हम रिश्तों के नाम पर दूसरों की जिंदगियों के साथ इंसाफ कर रहे हैं या नहीं। अब देखना ये है कि क्या मीहा इस दबाव में आकर टूट जाएगी या अपने हक के लिए खड़ी होगी। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट्स में अपनी राय लाजमी शेयर करें। अगर आपको ये तफसीली रिव्यू पसंद आया है और आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह हर किस्त का डीप एनालिसिस करूं, तो अभी के अभी इकरा जट रिव्यू को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि कोई भी अपडेट मिस न हो। आपका एक सब्सक्राइब मुझे मजीद ऐसी वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई और धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। हेलो एवरीवन।
उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल ए दिल आज़मा नहीं की आने वाली 11वीं किस्त के टीजर के बारे में, जिसने सोशल मीडिया पर एक नई बहस छेड़ दी है। यार सच्ची बात तो ये है कि इस बार का टीजर देखकर दिल वाकई बोझल सा हो गया है। टीजर की शुरुआत ही इतनी हैवी है कि आपको अंदाजा हो जाता है कि कहानी अब किस कदर संजीदा मोड़ इख्तियार कर चुकी है। हमें दिखाया गया है कि कैसे एक इंसान अपनी जिद की खातिर दूसरे की जिंदगी को दांव पर लगा देता है। वो जो एक डायलॉग है ना कि मैं तब तक नहीं हटूंगा जब तक तुम मान नहीं जाते, ये सुनकर साफ लग रहा है कि यहाँ मोहब्बत नहीं बल्कि अपनी बात मनवाने की जंग हो रही है। सबसे बड़ी डेवलपमेंट जो इस टीजर में नजर आई वो मीहा के निकाह का फैसला है। अक्सर हमारे ड्रामों और मुआशरे में समझा जाता है कि बस शादी कर दो तो सारे मसले हल हो जाएंगे, लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है? टीजर में इसी तल्ख हकीकत को दिखाया गया है कि जबरदस्ती के जोड़ कभी भी सुकून नहीं दे सकते। जब रिश्ते में भरोसा और मर्जी शामिल ना हो तो वो रिश्ता एक बोझ बन जाता है जिसे ढोना बहुत मुश्किल होता है। और भाई, टीजर के आखिर में जो बात कही गई है उसने तो जैसे रूह को छू लिया। दिल आसमान नहीं कि हर बात समा जाए, उसकी भी एक हद होती है। क्या कमाल बात कही है। अक्सर हम दूसरों से ये तवक्को रखते हैं कि वो हर दुख, हर जबरदस्ती और हर फैसला खामोशी से कबूल कर लेंगे, लेकिन इंसान के अंदर भी एक हद होती है जहां जाकर वो टूट जाता है। ये किस्त बहुत ही जज्बाती होने वाली है और हमें ये सोचने पर मजबूर करेगी कि क्या हम रिश्तों के नाम पर दूसरों की जिंदगियों के साथ इंसाफ कर रहे हैं या नहीं। आपको क्या लगता है, क्या मीहा का निकाह उसकी जिंदगी की मुश्किलें कम करेगा या बढ़ा देगा? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो इस टीजर का निचोड़ है वो आखिर में कही गई ये लाइन है, दिल आसमान नहीं कि हर बात समा जाए, उसकी भी एक हद होती है। क्या कमाल बात कही है। अक्सर हम दूसरों से ये तवक्को रखते हैं कि वो हर दुख, हर जबरदस्ती और हर फैसला खामोशी से कबूल कर लेंगे, लेकिन इंसान के अंदर भी एक हद होती है जहां जाकर वो टूट जाता है। जब दिल भर जाए तो फिर ना मोहब्बत बाकी रहती है और ना ही लिहाज। ये किस्त बहुत ही जज्बाती होने वाली है और हमें ये सोचने पर मजबूर करेगी कि क्या हम रिश्तों के नाम पर दूसरों की जिंदगियों के साथ इंसाफ कर रहे हैं या नहीं। अब देखना ये है कि क्या मेहा इस दबाव में आकर टूट जाएगी या अपने हक के लिए खड़ी होगी। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट्स में अपनी राय लाजमी शेयर करें। अगर आपको ये तफसीली रिव्यू पसंद आया है और आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह हर किस्त का डीप एनालिसिस करूं, तो अभी के अभी इकरा जट रिव्यू को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि कोई भी अपडेट मिस न हो। आपका एक सब्सक्राइब मुझे मजीद ऐसी वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई और धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल ए दिल आज़मा नहीं की आने वाली 11वीं किस्त के टीजर के बारे में, जिसने सोशल मीडिया पर एक नई बहस छेड़ दी है। यार सच्ची बात तो ये है कि इस बार का टीजर देखकर दिल वाकई बोझल सा हो गया है। टीजर की शुरुआत ही इतनी हैवी है कि आपको अंदाजा हो जाता है कि कहानी अब किस कदर संजीदा मोड़ इख्तियार कर चुकी है। हमें दिखाया गया है कि कैसे एक इंसान अपनी जिद की खातिर दूसरे की जिंदगी को दांव पर लगा देता है। वो जो एक डायलॉग है ना कि मैं तब तक नहीं हटूंगा जब तक तुम मान नहीं जाते, ये सुनकर साफ लग रहा है कि यहाँ मोहब्बत नहीं बल्कि अपनी बात मनवाने की जंग हो रही है। सबसे बड़ी डेवलपमेंट जो इस टीजर में नजर आई वो मीहा के निकाह का फैसला है। अक्सर हमारे ड्रामों और मुआशरे में समझा जाता है कि बस शादी कर दो तो सारे मसले हल हो जाएंगे, लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है? टीजर में इसी तल्ख हकीकत को दिखाया गया है कि जबरदस्ती के जोड़ कभी भी सुकून नहीं दे सकते। जब रिश्ते में भरोसा और मर्जी शामिल ना हो तो वो रिश्ता एक बोझ बन जाता है जिसे ढोना बहुत मुश्किल होता है। और भाई, टीजर के आखिर में जो बात कही गई है उसने तो जैसे रूह को छू लिया। दिल आसमान नहीं कि हर बात समा जाए, उसकी भी एक हद होती है। क्या कमाल बात कही है। अक्सर हम दूसरों से ये तवक्को रखते हैं कि वो हर दुख, हर जबरदस्ती और हर फैसला खामोशी से कबूल कर लेंगे, लेकिन इंसान के अंदर भी एक हद होती है जहां जाकर वो टूट जाता है।
یہ قسط بہت ہی جذباتی ہونے والی ہے اور ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرے گی کہ کیا ہم رشتوں کے نام پر دوسروں کی زندگیوں کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں یا نہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا میحا کا نکاح اس کی زندگی کی مشکلیں کم کرے گا یا بڑھا دے گا؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ سب سے امپورٹنٹ بات جو اس ٹیزر کا نچوڑ ہے وہ آخر میں کہی گئی یہ لائن ہے، دل آسمان نہیں کہ ہر بات سما جائے، اس کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ کیا کمال بات کہی ہے۔ اکثر ہم دوسروں سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہر دکھ، ہر زبردستی اور ہر فیصلہ خاموشی سے قبول کر لیں گے، لیکن انسان کے اندر بھی ایک حد ہوتی ہے جہاں جا کر وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جب دل بھر جائے تو پھر نہ محبت باقی رہتی ہے اور نہ ہی لحاظ۔ یہ قسط بہت ہی جذباتی ہونے والی ہے اور ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرے گی کہ کیا ہم رشتوں کے نام پر دوسروں کی زندگیوں کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں یا نہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا میحا اس دباؤ میں آ کر ٹوٹ جائے گی یا اپنے حق کے لیے کھڑی ہوگی۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے لازمی شیئر کریں۔ اگر آپ کو یہ تفصیلی ریویو پسند آیا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ میں اسی طرح ہر قسط کا ڈیپ انالیسس کروں تو ابھی کے ابھی اقرا جٹ ریویو کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ کوئی بھی اپڈیٹ مس نہ ہو۔ آپ کا ایک سبسکرائب مجھے مزید ایسی ویڈیوز بنانے کے لیے موٹیویٹ کرتا ہے۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی اور دھماکے دار ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔